Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Rohit. Good morning, Ari. Good morning, Ajinkya. It is good morning, Gajbi. Good morning, Darshan. Good morning, Jaydeep. Good morning, Chaitanya. Jahind. Good morning, Leeladhar. Good morning, Adesh. Okay, let's start. So, Adesh, please mute your mic. Everyone, I advise Tanmay, please mute your mic. Everyone else, please mute your mic. Okay, thank you. So we started looking into
the PVC awardees, and prior to that, we have seen something related to each of these chakras. So, as far as the uh, battlefield awards are concerned, so Paramveer Chakra comes first, Mahavir Chakra comes later on, and then there will be the Veer Chakra. Likewise, in a peacetime or except wartime or not with not fighting with the enemy, if something shows a gallantry or the valor or the self-sacrifice, then uh, he would be eligible for the gallantry awards called Ashok Chakra. Then there was Kirti Chakra, and at the last you can have the Shaurya Chakra. So these are the three chakras for battlefield and the remaining three chakras for the peacetime. Fine. So just keep in mind these things. So very first recipient of Paramveer Chakra award we have considered is Somnath Sharma, right? Major Somnath Sharma. Right? So while fighting with Pakistanis in 1947, right, he had shown exceptional bravery for uh, and he had identified the gravity of the uh, what you can consider the gravity of the danger, right? जो लगभग 700 एनिमीज वेस्ट घाटी से आकर श्रीनगर एयर बेस की तरफ जा रहे थे, तो उस खतरे को नाप कर उसकी गंभीरता समझकर सोमनाथ शर्मा जिस तरीके से डटे रहे, जिस तरीके से उन्होंने अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म किया, 6 घंटे तक उन्होंने बहुत कम लोगों के साथ, बहुत कम सैनिकों के साथ 700 पाकिस्तानियों से एक जंग लड़ी, जिसमें उनका एट द लास्ट ही लॉस्ट हिज लाइफ बिकॉज ऑफ ए mortar attack on the ammunition nearby him. So उसमें वो पूरी तरह से घायल हो गए थे, completely wounded, and then he sacrificed his life, but he succeeded in doing whatever he was rather he decided to do, right? And for that, on behalf of him, his father received the Paramveer Chakra. That was India's first Paramveer Chakra, right, to Major Somnath Sharma. Later on, you will come to know, come now for the second recipient of Paramveer Chakra, and that is the Lance Naik Karam Singh. Lance Nayak Karam Singh. Fine. So as far as Karam Singh is concerned, who born on 15th of September 1915 in a village called Sehna in the district of Barnala at Punjab.
whose father was Uttam Singh. He enrolled in army on 15th of September 1941. So you may consider that if he had enrolled in 1940, and then he must have gone for World War II. Yes, he fought World War II, wherein he already received for his bravery the military medal. He was the part of one Sikh regiment. So in 1948, there had been a war with Pakistan. In fact, already it was started in 1947 in Jammu and Kashmir. So पश्चिम घाटी में तिथवाल एक पोस्ट है. तिथवाल घाटी जो किशन गंगा नदी है, वहां पे उस वादियों में आपको ये पॉइंट मिलेगा. सो तिथवाल क्षेत्र में हमारी आर्मी ने जीत दर्ज की थी, और जो भी पॉइंट्स पाकिस्तानियों ने कैप्चर कर लिए थे, वो हम लोगों ने अब वापस कैप्चर कर लिए थे. So this has happened on 23rd of May 1948. लेकिन उस केस में हुआ ऐसा था कि दुश्मन ने किशन गंगा नदी में अपना सारा सामान, अपने सारे अवसाजो सामान को फेंक दिया था और वो भाग गया था. जब वो हमारे साथ लड़ रहा था, उसको पता चल गया कि अब वो जीत नहीं सकता है और उसको पोस्ट खाली करना पड़ेगा. तब उन्होंने ये किया और वो भाग गए. लेकिन फिर से उन्होंने अपनी सेना को पुनर्गठित किया. जो जमीन उन्होंने हमारे साथ खोई थी, उसको दोबारा पाने का फैसला किया और पूरी ताकत के साथ जोरदार जवाबी हमला किया. और उस हमले में दुर्भाग्यता से भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा और वो किशन गंगा की जो घाटी थी उसको खाली करना पड़ा, और तिथवाल की पोस्ट फिर से उनके पास चली गई. अब ये सब हो गया था मई 1948 में. ये कुछ 3-4 महीने वैसे ही चला. फिर 13 अगस्त 1948 में एक ब्रिगेड ने उस पर हमला बोल दिया. सो वो जो तिथवाल की घाटी, तिथवाल की जो पोस्ट थी, जो उन्होंने पाकिस्तानियों ने फिर से हासिल कर ली थी, उसको वापस लेना बहुत जरूरी था. क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें प्रोग्रेस करनी है आगे जाकर, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स थे. जैसे देखिए, एलओसी में देखा था हमने, हम लोगों को अभी 1947 या 48 का तो उतना ज्यादा रिलेवेंट है नहीं, लेकिन एलओसी का हम लोग करीबी से देख सकते हैं. ये हमारे जमाने का है, और उस पर जो मूवीज बनी है, तो उसमें बहुत सारी बातें लगभग सही है. ठीक है, कोई बात मतलब हर बात तो होगी नहीं, एक आध दूसरी बात एग्जैगरेटेड हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा से ज्यादा बातें तो सही है. उसी तरह से वहां पे भी हो गया था. अब उसको तो वापस लेना ही है, और उसके लिए एक ब्रिगेड ने फिर से अक्टूबर 1948 में एक हमला बोल दिया to push back the enemies from Tithwal post and to recapture it. So हमारे कई प्रयास उसमें असफल रहे, लेकिन एक दिन रात में तोफों और मोर्टरों की भारी गोलीबारी हुई. उसके जवाब में दुश्मन ने भी तोफ और मोर्टर से भारी गोलीबारी की. तो एक सेक्शन था जिसको करम सिंह लीड कर रहे थे.
तो करम सिंह एक अग्रिम सीमा चौकी की कमान संभाले हुए थे, वो अपने सेक्शन के साथ वहां पे लीड कर रहे थे। लगभग 10 गुना से भी ज्यादा की शत्रु की मात्रा वहां थी। तो ये देख लेना, एक सेक्शन इनके पास है और उससे 10 गुना ज्यादा शत्रु सामने से आ रहा है। अब शत्रु ने उस वक्त लगभग 8 बार हमला किया था। देख लेना, 8 बार हमला किया था। अब उन्होंने पहला हमला कर दिया, इन्होंने उसको पुश बैक कर दिया। दूसरा हमला हो गया, तीसरा हमला हो गया। दुश्मनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करें। हर हाल में इस तिथवाल को तो छोड़ना नहीं है, या फिर जिन्होंने जितना हमारे सैनिकों ने ले लिया है वो भी उनको वापस लेना था। तो उसके हिसाब से वो जवाबी हमला कर रहे थे। अब उस केस में जिस तरह से ये अपनी कमाल संभाले हुए थे, जिस तरह से वो अपनी सेक्शन को मोटिवेट कर रहे थे, और जिस तरह से वो जवाबी हमला कर रहे थे, उस हिसाब से अब लगभग 8 बार हमला करने के बावजूद भी ये दुश्मन उसको रिकैप्चर कर नहीं पाया। लेकिन अभी 8 बार हमला हो गया, मतलब कभी ना कभी आपको वो चोट तो देगा ही। सो ही वाज कंप्लीटली वुंडेड इन वॉर। तो लांस नायक करम सिंह जब 5वीं बार हमला हो गया, जो बहुत सोचा समझा हमला था, जिसमें कुछ शत्रु सीधे उनके ऊपर आए थे। अब ये फायरिंग भी कर रहे थे, अपने सेक्शन को मोटिवेट भी कर रहे थे, बंकर में यहां से वहां घूम भी रहे थे। और ऐसे में 2 शत्रु इनके पास आ गए। उनको समझ में आ रहा है, उनको वो देख रहे हैं उनको, हालांकि वो बहुत बुरी तरह से घायल भी हुए थे, लेकिन वो जवाबी हमला नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो जवाबी हमला करते तो उसमें पहले हमारे ही सैनिक मर जाते, फिर अगर गोली उन तक पहुंचती तो शायद वो दुश्मन मर जाता। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बंदूक की बैनेट है उसको निकाला और सीधा उन 2 सैनिकों पे वो हमला कर दिए। अब ये तो हाथापाई हो रही है, उसमें वो और ज्यादा घायल हो गए। सो संगीन घोंफ कर उन्होंने उन दोनों को मार डाला, लेकिन उस केस में उनको गोलियां भी लगी। सो ये हो गया 5वीं बार। उसके बावजूद वो डटे रहे और 3 बार उन्होंने हर हमला पीछे धकेल दिया। सो इस साहसिक कार्य से दुश्मन का मनोबल पूरी तरह से नहस तहस हो गया, वो टूट गया। सो वे अपने साथियों के लिए प्रेरणा और दुश्मन के लिए आतंक बन चुके थे। फाइन। सो वो दुश्मन के लिए एक आतंक बन चुके थे और अपने साथियों के लिए प्रेरणा बन चुके थे। और उस केस में हाँ, हालांकि वो उसमें पूरी तरह से घायल हुए थे, लेकिन जो टिटवाल की पोस्ट थी वो हमारे पास ही। तो एक ही दिन में पाकिस्तान के 8 हमले को नाकाम करने के साहसिक कार्य के लिए इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो दैट इज व्हाट यू कैन कंसीडर। वो बाद में कई दिनों तक थे। अब ये बात हो रही है 1948 की। बाद में एट द ओल्ड एज इन 1993, राइट, ही पास्ड अवे। सो पहला वाला था पोस्टुमसली। इनको मतलब इनका खुद का पीवीसी उन्होंने खुद ले लिया था। यहाँ पे एक बात देख लेना, ये लिखा है ऑनररी कैप्चर, ठीक है। तो इस साहस को याद रखकर जब उनका रिटायरमेंट आया
तब उनको प्रमोट करके ऑनररी कैप्टन बना दिया। Right? मेरे ख्याल से तब वो सूबेदार मेजर रहे होंगे जब वो रिटायर हुए थे, लेकिन जब होने वाले थे, लेकिन उनके इस साहस को याद कर कर उनका उचित सम्मान हो, इस हिसाब से उनको ऑनररी कैप्टन बना दिया। सो दिस इज व्हाट द सेकंड परमवीर चक्र रेसिपिएंट। अब तीसरी कहानी लगभग ऐसी ही है, लेकिन सिर्फ क्षेत्र अलग है, वो है इंजीनियरिंग का। वही बैटलफील्ड है, वही दुश्मन है, वही जगह है, सिर्फ आदमी और रेफरेंस अलग है। अब ये सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबर राणे, whose date of birth was 26th of January 1918, who was from Maharashtra, whose father was R.P. Rane. He commissioned in Engineering Corps on 15th of September 1947. And he had retired in 1968 as major. But during this course of service, he showed an exceptional gallantry, valor, and received third Paramveer Chakra, India's highest military decoration. So on 18th of March 1948, army captured a place called Jangar, which it was lost in December 1947 to Pakistan. So जब कव्वालियों ने हमला कर लिया था, तो वो वहां के सिविलियंस पर, लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। तो इन सिविलियंस को अत्याचारों से बचाने के लिए नौशेरा से राजौरी की ओर हमारी फौजें बढ़ने लगी। रास्ते में चिंगास नाम का एक प्लेस पोस्ट पड़ता था। दुश्मन ने वहां पे चारों ओर मिसाइल बिछा रखी थी। कैसे भी करके हम लोगों ने दुश्मन को चिंगास से तो पीछे धकेल दिया था, खदेड़ दिया था, लेकिन दुश्मन ने एक चाल चली थी। उन्होंने सड़क बाधाओं और सुरंगों की बौछार और बिछाई थी, और उसके कारण हमारे टैंक, हमारे सैनिक आगे बढ़ नहीं रहे थे, और ये एक बहुत बड़ी मुश्किल हो गई थी। और हमें बहुत जल्द से जल्द चिंगास से हमें राजौरी पहुंचना ही था। नौशेरा को हमें हमारे कब्जे में रखना ही था। अब इस दौरान ये इंजीनियर थे, इनका काम था, ये घातक प्लाटून के कमांडो थे। घातक प्लाटून का हिस्सा होने के कारण सबसे पहले जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनकी बनती थी कि जाओ और वो रास्ता साफ कर दो। अब ये रास्ता साफ करे तो करे, कितना करे, क्योंकि लगभग हर कुछ डिस्टेंस के बाद उन्होंने माइंस बिछा रखी थी। लेकिन उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए और लगभग 500 से ज्यादा दुश्मन को उन्होंने मार गिराया। उन्होंने मतलब उनका जो सेक्शन था उसको उन्होंने मार गिराया अपने मोटर के साथ, अपनी गन के साथ, जितना हो सके उतना फायरिंग करके। और जैसे जैसे वो दुश्मन को मारते गए, वैसे वैसे अपना रास्ता भी साफ करते गए, माइंस ढूंढते गए, उसको निकाले, उसको डीएक्टिवेट कर लिया। और जैसे जैसे ये माइंस निकाल के रास्ता साफ करते थे, वैसे वैसे हमारे टैंक्स, हमारे सैनिक आगे बढ़ते हुए नौशेरा की ओर निकल पड़े थे। लेकिन इस दौरान बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे। जब ये राजौरी और चिंगास में बेकसूर लोगों की जान बचाने के काम के लिए मदद कर रहे थे, वहां पर आगे बढ़ रहे थे और दुश्मन से गोली झेल रहे थे, तब वो खुद बहुत बुरी तरह से घायल हुए थे। लेकिन लगभग एक साथ 72 आवर्स इन्होंने वो काम करके पहले 16 घंटों में 10 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह से साफ कर लिया था, और बाकी के घंटों में उन्होंने लगभग 13 किलोमीटर का रास्ता साफ किया था। और इस तरह से हमारी तोहफे, हमारे टैंक, हमारे सैनिक सफलता पूर्वक
राजौरी नौशेरा में पहुंच गए थे, लेकिन उसमें इनको कई बार गोलियों का सामना करना पड़ा उनको। वो उसमें घायल भी हुए थे, लेकिन इस एक्सेप्शनल ब्रेवरी के लिए, इनके इस वैलर के लिए, जान की परवाह न करते हुए टैंक और अपने पूरे कंपनी को आगे लाने के लिए उन्होंने जिस तरह से अपना साहस दिखाया, उसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सो इंडिया's थर्ड परमवीर चक्र रेसिपिएंट राम राघोबा राणे, इनफैक्ट सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे, 72 घंटे बिना खाए बिना सोए लड़ते रहे। एक तरफ उनको लड़ना भी था, दूसरी तरफ रास्ता भी साफ करना था। फाइन, सो टू एडवांस इंडियन फोर्सेस ऑन राजौरी during this particular war. Fine. So this is what the third PVC recipient. और डॉक्टर हमारे उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों से उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया। तो ये उस वक्त की तस्वीर है। उसके बाद आता है नायक जदुनाथ सिंह, इनको पोस्टुमसली परमवीर चक्र दिया गया। नायक जदुनाथ सिंह, उनका जन्म 21 नवंबर 1916 में खाजूरी गांव शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके फादर का नाम बिरबल सिंह था। 21 नवंबर 1941 में वो राजपूत रेजिमेंट का हिस्सा बने, भर्ती हो गए। अब इनकी भी कहानी लगभग वैसी ही है जिस तरह से हम क्या कह सकते हैं, Are you able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, what do you see? Okay, let me change it. Now, what do you see? Slide number 30. Slide number 30. Yadunat Singh, Parmveer Chakra 4. यदुनाथ सिंह, राइट? Yes, sir. एक स्लाइड पे 3 पिक्चर दिख रहे, राइट? Yes, sir. इसके Yes, अलावा sir. कुछ नहीं दिख रहा है ना? No, sir. अच्छा, एक मिनट। हाँ, ओके, फाइन। सो जैसे इस जंगर और राजौरी की बात चल रही थी, ठीक है, जो अप्रैल मई में, जैसे हम लोगों ने अभी राघोबा रानी की केस में देखा। तो बाद में 24 दिसंबर 1947 को झंगर पर कब्जा करने के बाद नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी कबालियों की स्थिति मजबूत हो गई थी। सो उसकी वजह से मीरपुर से पुंछ तक की जो संचार लाइन थी, उस पर पूरा अधिकार उनका हो गया था, और उसके कारण वे अब नौशेरा पर हमले के लिए अपनी सेना को तैयार कर रहे थे। उस वक्त भारतीयों ने इस खतरे को
नाप लिया था, उनको इसका एहसास हो गया था। तो उन्होंने जनवरी 1948 में नौशेरा से उत्तर पश्चिम में एक गांव था कोट नाम का, उस पर कब्जा कर लिया था ताकि वो नौशेरा को बचा सके। और जो जंगर नाम का जो पोस्ट है जो पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था, वो फिर से वापस ले ले। सो नौशेरा पर शत्रु का हमला निश्चित था। तो उस केस में 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने दुश्मन के इस आक्रमण के सभी संभावित रास्तों पर अपनी चौकियां बनाकर उसे नाकाम करने का फैसला कर लिया, और उस तरह से उन्होंने काम भी कर लिया। तो ये जो चौकियां बनाई थी उन्होंने हर रास्ते पर, उनमें से एक रास्ता नौशेरा के उत्तर में उत्तर से होकर जाता था। सो शत्रु का संभावित हमला सोचकर उन्होंने जो ये चौकियां बनाई थी, उसमें एक चौकी की कमान यदुनाथ सिंह पर सौंपी थी। सो एक दिन सुबह सुबह लगभग 6:30 बजे, जब पूरा मतलब थोड़ा धुंधला था, तब ये फरवरी की बात है, शायद 6 फरवरी 1948 में सुबह थोड़ा धुंधला था, तब 6:30 बजे दुश्मन ने हमला कर दिया। सो दुश्मन ने इस पहाड़ी की ओर से भारतीय ठिकानों पे हमला कर दिया। तो भारत की जो पेट्रोलिंग की टीम थी उस पर बड़ी गोलीबारी शुरू कर दी। और इसी के साथ सारा तैरधार जो फीचर था उत्तर की ओर, सो उस फीचर और उसके आसपास की पहाड़ियां मशीन गन और मोर्टार की फायर से गूंज उठी थी। और इसी बीच अंधेरे का फायदा उठाकर दुश्मन भारतीय पिकेटों तक घुस आए थे। अब पहले से वहां चौकियां थी, और चौकियां स्थित होने के कारण वहां पे जो हमारे सैनिक थे, उन्होंने पिकेटों की इस घुसपैठ को देखा, और ये जो हजारों दुश्मन सामने से आ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, उनको देखा और उसकी गहराई को समझ लिया। और उसी दिन राइट, और उसी वक्त उन्होंने अपनी सीनियर्स को ये सारी बातें इन्फॉर्म कर दी, और पूरी तरह से तैयार हो गए, दो हाथ ये हजारों की तादाद की दुश्मन की सैनिकों से करने गए। सो 6 फरवरी के निर्णायक दिन नायक यदुनाथ सिंह जहां पे तैनात थे, वो एक 2 नंबर की अग्रिम चौकी संभाले हुए थे। इस छोटी सी चौकी की रखवाली उनके अलावा 9 सैनिक कर रहे थे। मैंने कहा ना, एक सेक्शन। सो इस चौकी पर कब्जा पाने के लिए शत्रु ने एक के बाद एक कई हमले बोल दिए। पहले आक्रमण के दौरान शत्रु चौकी तक आ पहुंचा था, तब जो कठिन परिस्थिति हो गई थी, उसमें नायक यदुनाथ सिंह ने बहुत बड़ा पराक्रम और उत्कृष्ट नेतृत्व किया। जब उन्होंने अपने उत्कृष्ट नेतृत्व का परिचय किया, और उनके अलावा जो 9 लोग वहां पे थे, उनके सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा, और उनको साहस देते हुए अपनी छोटी सी टुकड़ी का उन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ संचालन किया। और उन्होंने कहा कि हमें घबराना नहीं, मतलब उन्होंने ऐसा मोटिवेट किया कि घबराना नहीं है, चाहे 1000 नहीं 10,000 क्यों ना सामने से दुश्मन आ जाए, और ये बात सोचना कि हम उनसे एक नंबर ज्यादा है, और
हर बार यह सोचना और दुश्मन को ऐसा लगना चाहिए कि ये तो मात्रा में हमसे ज्यादा है और वो घबरा कर पीछे हटना चाहिए। तो ये बात ध्यान में रखना और इसी हिसाब से, इसी मोटिवेशन से तुम ये जंग लड़ लेना, ठीक है। ये कर रहे थे। जब उनके 4 सैनिक घायल हो गए तो उन्होंने अपनी थकी मंदी टुकड़ी को दूसरे हमले का मुकाबला करने के लिए पुनः संगठित किया। पहला हमला तो उन्होंने बहुत आसानी से वापस धकेल दिया था। पहला हमला तो उन्होंने बहुत आसानी से वापस धकेल लिया था, लेकिन उसमें उनके 4 सैनिक बुरी तरह से घायल हुए थे। फिर भी उन्होंने उनको मोटिवेट कर लिया। दूसरे हमले की तैयारी में उन्होंने खुद को और अपने पूरे सेक्शन को लगा दिया। जब वे अपने सारे सैनिकों सहित घायल हो गए तब उन्होंने घायल गनर से ब्रेन गन ले ली थी। ब्रेन गन जिसे आप मोटा बोल सकते हैं। और दुश्मन अब जब सीधे चौकी की दीवार तक पहुंच गया है, उस हालत में उनके लगभग सारे साथी घायल है, तो उन्होंने उस ब्रेन गन की कमाल खुद संभाली और अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए वो सीधा अपने वो सीधा वो जो ब्रेन गन थी उसको, उसकी कमान संभाले हुए अपने सैनिकों को लड़ने के लिए उत्साहित करते हुए दुश्मन की ओर फायर कर रहे हैं। लेकिन हालांकि दुश्मन भी गोलियों की बौछार कर रहा है, गोलीबारी हो रही है, दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा है, तो उनकी गोलियों की बौछार में ये भी घायल हो रहे थे। लेकिन अब हालांकि इनके हाथ में ये ब्रेन गन थी, तो उनके गोलियों की बौछार में कई सारे शत्रु अपनी जान गंवा बैठे। इतनी विनाशकारी ये इनकी गोलियों की बौछार साबित हुई कि अब दुश्मन को लगने लगा कि उनकी हार बहुत बुरी तरह से निश्चित है और हमारी ओर से हमारी हार जो शायद बहुत बुरी तरह से हो सकती थी, अब वो धीरे धीरे जीत में बदल रही थी। तो दुश्मन जब दुश्मन पे हमला कर रहे थे, तब दुश्मन मृतकों की और भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग ऐसे थे कि जो अपनी भूमि छोड़कर घबरा कर भाग गए थे। अंत में लगभग सारे दुश्मन को पीछे हटना पड़ा, पीछे भागना पड़ा। और इस प्रकार दूसरी बार भी उन्होंने अपनी जो चौकी थी उसको दुश्मन से बचाए रखा। लेकिन अब तक चौकी के सभी लोग हताहत हो चुके थे। लड़ते लड़ते वो पूरी तरह से घायल हो चुके थे। तभी शत्रु ने चौकी पर अधिकार करने के लिए कुछ अलग सोचकर, संकल्प करके बहुत बड़ी संख्या के साथ तीसरा हमला किया। दुर्भाग्यता से वो अंतिम हमला था। तो तब अकेले और पूरी तरह से घायल नायक जदुराज सिंह ने एक बार फिर शत्रु से दो हाथ करने की ठानी। वे अपने खाई से बाहर आए। उन्होंने अपनी स्टेन गन से गोलीबारी करते हुए शत्रु पर टूट पड़े। इससे शत्रु पूरी तरह से हतोत्साहित हुआ था। उनको ऐसा लगा कि अब फिर से पीछे भागना पड़ेगा और वो वापस भागने लगे। लेकिन इस दौरान जो तीसरा हमला हुआ था, इस दौरान वे पूरी तरह से घायल हुए और वीर गति को प्राप्त हुए, क्योंकि 2 गोलियां उनके सीधे सीने और सिर को पार कर गई थी। तो नौशेरा की इस लड़ाई को बहुत ही नाजुक मोड़ पर उन्होंने अपनी पिकेट को दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचा लिया था। उनके इस अद्भुत साहस
एवं उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र चक्र से सम्मानित किया, उनको वो प्रदान कर दिया। सो फोर्थ रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र यदुनाथ सिंह, नायक यदुनाथ सिंह, जो अपनी अंतिम सांस तक लड़कर नौशेरा की रक्षा कर रहे हैं। तो ये हो गया चौथा रेसिपिएंट। उसके बाद आता है CHM, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। इनका नाम है पीरू सिंह। इनका जन्म 20 मई 1918 बेरी गांव झुंझुना राजस्थान में हुआ। उनके पिताजी का नाम लाल सिंह था। ये 6 राजपूताना राइफल्स में 20 मई 1936 को भर्ती हो गए। जब पाकिस्तानी रेडर्स कबालियों ने तिथवाल सेक्टर में माउंटेड थे, तो वहां से वो एक स्ट्रॉन्ग काउंटर ऑफेंसिव करके फिर से उन्होंने वो एक तिथवाल का पोस्ट है वो कैप्चर कर लिया था, राइट, फॉर ए कैप्चर्ड इन ए रिंग काउंटर। अब इंडियंस को हर हाल में वो वापस चाहिए, सो इंडियन फोर्स टू वैकेट दैट पर्टिकुलर पोजीशन बिकॉज ऑफ ए वेरी स्ट्रॉन्ग अटैक, और हिंदुस्तानियों को वो पोस्ट खाली करके पीछे आना पड़ा। फिर on 8th of July 1948, 6 Rajputana rifle moved from Uri to Tithwal to strengthen 163rd Brigade. So enemy hold 2 high feature areas, of which capturing by Indians was very essential to make any further progress. तो उसके लिए अब ये जो नई कंपनी जो 6 राजपूताना राइफल आई, जिसका एक हिस्सा ये कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह भी थे, तो उस राजपूताना राइफल्स को ये दोनों हाई पॉइंट हाई फीचर्स वापस लेने की कमान सौंपी। तो उन्होंने 2 कंपनियां बनाई। पहले कंपनी को 1 पॉइंट का एक फीचर दिया, दूसरी कंपनी को कंपनी सी और कंपनी डी, तो दूसरे कंपनी को दूसरा फीचर वापस लेने का कमान सौंप दी। तो डी कंपनी started or carried out their task to take back these high features or recapture these high features। लेकिन वो जब उस तरफ जा रहे थे, तो जो रास्ता था वो बहुत ही छोटा रास्ता था, वेरी नैरोड रोड ब्लॉक वाज देयर। अब उनका जो ऑब्जेक्टिव था उसको वापस लेना है, उस हाई फीचर को, और इस रास्ते से गुजर कर वो कर सकते थे, लेकिन इस रास्ते के दोनों साइड से दुश्मनों ने खंडर बना दिए थे और दुश्मन वहां पे छुप कर बैठा था। So hidden enemies had been there in the bunkers. When ये कंपनी वहां से गुजर रही थी, so this complete company subjected to a heavy fire from both sides of the road, right, by the bunkers, और उसमें लगभग 51 कैजुअलिटीज हो गई सिर्फ आधे घंटे में। अब कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह तो एक सेक्शन को लीड कर रहे थे, तो he rushed quickly forward to a machine gun जो बहुत बुरी तरह से फायर कर रही थी हम लोगों पे, दुश्मन की एक मशीन गन। तो उन्होंने उस पर हमला बोल दिया और उस मशीन गन ने एक हैवॉक कर दिया था अपनी कंपनी पर। तो उन्होंने उसको पहले नाकाम कर दिया, लेकिन उनकी ओर, दुश्मन की ओर से ग्रेनेड भी फेंके जा रहे थे। तो ड्यूरिंग वन ऑफ द ग्रेनेड स्प्लिंटर्स रिप्ड
his clothes and wounded his body. जब ये आगे बढ़ रहे थे तब वो एक ग्रेनेड से इनका सामना हो गया और उसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गए. लेकिन that grenade hadn't deterred him back. हालांकि he continued to advance, ठीक है, by shouting a cry, बोलो राजा रामचंद्र की जय. Right. So each of these regiments or groups have their own shouting cry or the battle cry. Right. उनका एक जयघोष होता है, वैसे उनका था राजा रामचंद्र की जय. सो राजा रामचंद्र की जय बोलते हुए वो आगे ही बढ़ते रहे. हालांकि एक ग्रेनेड में वो पूरी तरह से घायल हो गए थे. He rushed forward, bayoneted the crew with his Sten gun, silenced the enemy machine gun and occupied that particular post. पूरी पोस्ट की बात नहीं है, मैं छोटी बात कर रहा हूं उसमें, क्योंकि इनका साहस बहुत बड़ा है. ठीक है, आप भी समझ जाएंगे कि सच में ये ऐसा साहस हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो ये कहां से आता है? राइट. और ये बहुत बड़ी प्रेरणा देगा. ठीक है, अब तक के जितने भी परमवीर चक्र रेसिपिएंट्स की साहस को हमने देखा है, समझा है, उसमें मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब मैं ये पढ़ रहा था ये स्टोरी, तो मुझे सच में ऐसा लगा कि सच में इतना साहस हो सकता है कि अगर है तो ये साहस आता कहां से है? क्या उस वक्त खुद भगवान हमारे अंदर आ जाते हैं? क्या उस वक्त हमारे अंदर जो खून दौड़ता है वो भारत माता की रक्षा करने के लिए क्या कई गुना रफ्तार से दौड़ता है? क्या उस वक्त हमें हम जो काम कर रहे हैं उसके अलावा कुछ भी नहीं सूझता, कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी याद नहीं आता क्या? हम उस वक्त कैसे क्या अपनी जान के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकते? तो अगर ये कौन सा साहस है, क्या है? ऐसे कई सारे सवाल. ठीक है, जैसे ये एक पूरी किताब जब मैं इंडिया फर्स्ट फील्ड मार्शल सैम मैनिकशॉ को लेकर पढ़ रहा था. राइट, लगभग 200 पेजेस की किताब एक ही बार में अगर आप पूरी तरह से खत्म कर रहे हो तो आप भी उससे मिल गए हो, एकदम मिलजुल गए हो, और एक साथ, राइट, इन अ सिंगल शॉट अगर आप उसको पूरी तरह से पढ़ रहे हो तो मतलब आपके अंदर भी कुछ हिडन क्वालिटीज है. जब तक आप वो करेंगे नहीं तब तक आपको दिखेगा नहीं. उसी तरह से, ठीक है, इनके पास भी हिडन क्वालिटीज है और उनको मोटिवेट करने के लिए भारत माता है. सो इस बात को अगर बहुत नजदीकी से देखेंगे, सोचेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये हो सकता है. ठीक है, तो इसका अगला जो बचा हुआ पार्ट है वो हम कल देखेंगे. फॉर टुडेज पॉइंट ऑफ व्यू और दिस सेशन आई विल स्टॉप हियर. Thank you, sir. Okay, anything which you would like to Sir. know or यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज द पीवीसी मेडल मेड ऑफ? आयुष, वो ब्रॉन्ज से बना हुआ होता है. ठीक है, ब्रॉन्ज, वेरी प्योर ब्रॉन्ज है वो, तो ब्रॉन्ज से बना हुआ मेडल है. ओके, if nothing else, I will stop here. Thank you everyone. Have a good day. Thank you, sir. Have a nice day, sir. Thank you, sir.